Hello student, today we will discuss about the part 7 of molecular basis of inheritance. In this part we will discuss about the transcription and transcription unit. First we will discuss about the transcription. It is the process of copying genetic information from the antisense or template strand of the DNA into RNA. So transcription is simply formation of RNA from DNA. DNA से RNA बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. It meant for taking the coded information from DNA, which is formed or present in the nucleus, to the site where it is required for protein synthesis, which takes place in cytoplasm in eukaryotes. In prokaryotes, because DNA, a circular DNA is present in the cytoplasm known as nucleoid, and formation of this is DNA and formation of mRNA takes place in the cytoplasm. So in prokaryotes, the transcription takes place in the cytoplasm, but in eukaryotes, because DNA is present inside the nucleus, DNA is present here, so DNA is formed inside the nucleus and it is transported out of the nucleus into the cytoplasm. After formation of mRNA in the nucleus, it comes out through the nuclear pore in the cytoplasm, where protein synthesis takes place with the help of ribosome and the other type of RNA, for example tRNAs. So in eukaryote, the RNA synthesis takes place in the cytoplasm because there is no nucleus present in the cytoplasm. DNA is present in the cytoplasm. And second thing, that in prokaryote, the transcription and translation means formation of mRNA and formation of protein takes place simultaneously. But here in eukaryotes, the formation of mRNA takes place first. The formation of mRNA takes place inside the nucleus, then it comes out of the nucleus into the cytoplasm, where translation takes place later on. Principle of complementarity used even in transcription. Principles of complementarity, as we have discussed in DNA, that adenine pairs with thymine with the help of 2 double bond, and cytosine pairs with guanine with the help of 3 double bond. But in mRNA, there is no pairing because mRNA is a single stranded structure. So in DNA, if the sequence of template is A, T, C, G and C, then mRNA, sequence of mRNA will be the complementary of adenine. In DNA is the thymine, but in mRNA, thymine is replaced by uracil. Here thymine is there. mRNA में जो complementary nucleotide ऐड होगा वो adenine होगा. guanine का complementary cytosine, तो mRNA में cytosine ऐड हो जाएगा. अगर DNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड में साइटोसिन है तो mRNA में गुआनिन ऐड होगा. तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्रिटी पाई जाती है, बट देयर इज ओनली डिफरेंस दैट थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल. थाइमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है. दिस यूरेसिल इज इनकॉर्पोरेटेड इंस्टेड ऑफ थाइमीन. ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में होता है. देन इट इज मूव टू द साइटोप्लाज्म where protein synthesis takes place, as we have discussed right now. Transcription takes place during G1 and G2 phase of cell cycle. Transcription occurs in 5'
to 3' direction. As we also have discussed at the time of replication that newly formed chain, direction of newly formed chain is the 5' to 3' direction. यहाँ पर भी जो mRNA चेन बनेगी उसका फॉर्मेशन जो है वो 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। इसका रीजन क्लियर है कि यहाँ पर 3' एंड पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड होने के लिए ये 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। इसलिए इसका जो डायरेक्शन है mRNA या न्यूली सिंथेसाइज्ड चेन का जो डायरेक्शन है वो 5' से 3' एंड की तरफ होता है। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर फॉर पोलीमराइजेशन, ये भी हम डिफरेंस देख चुके हैं कि डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। शुगर प्रेजेंट इज राइबोन्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजिनस बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं वो एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, गुआनिन होते हैं। दिस थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमीन प्रेजेंट होता है। Next is the transcriptional unit. The segment of DNA that takes part in transcription is called transcriptional unit. It has three components: a promoter, the structural gene, and a terminator region. तो किसी भी ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर होता है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन और दूसरे एंड पर टर्मिनेटर होता है। अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये एक डीएनए है, सपोज ये इसका 5' एंड है, ये 3' होगा क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। ये 3' है, 5' एंड होगा। इस एंड पर यहाँ पर एक रीजन होता है जिसको हम प्रोमोटर रीजन कहते हैं। दिस इज द प्रोमोटर रीजन और दूसरे एंड पर टर्मिनेटर रीजन होगा। और बीच में स्ट्रक्चरल जीन। ये जो पार्ट है ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रोमोटर रीजन है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। ये टर्मिनेटर रीजन है, यहाँ पर कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से एमआरएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है और एमआरएनए चेन रिलीज़ होती है, एक मैच्योर एमआरएनए चेन रिलीज हो जाती है। ये वो रीजन है, स्ट्रक्चरल जीन वो रीजन है जिससे एमआरएनए बनना है। इस रीजन से आरएनए फॉर्मेशन होता है। इसकी इंफॉर्मेशन यानी जो आरएनए चेन है वो इस स्ट्रक्चरल जीन का जो एंटीसेंस है या जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका कम्प्लीमेंट्री एमआरएनए स्ट्रैंड होता है। Promoter region is located at the 3' end of the template. This is the template 3'। Promoter region 3' template के 3' end पर होता है and terminator region is present at the 5' end of the template strand. The promoter region has an AT-rich region called Tata box. Tata box is also called Pribno box in prokaryotes and Hogness box in eukaryotes. Actually, in promoter region of प्रोकैरियोट्स के प्रोमोटर रीजन में एक 6 बेस पेयर्स का एक रीजन प्रेजेंट होता है, TA AT। दिस इज कॉल्ड प्रिब्नो। प्रिब्नो बॉक्स। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर एक 7, यहाँ पर टोटल 6 बेस पेयर्स होते हैं और यूकैरियोट में 7 बेस पेयर्स होते हैं, TA
TA. So here total 7 base pairs are present, and this data box is called Hogness box. Next is the structural gene. It is the component of that strand of DNA which has 5' to 3' polarity, and this strand of DNA is called template strand, antisense strand, or negative strand. Next is the components of the transcriptional machinery. Transcription requires a template strand, activated precursors यानी ribonucleotide, a divalent metal for example magnesium 2+, and an RNA polymerase. RNA polymerase in eukaryotes are of 3 types. The RNA polymerase first for the ribosomal RNA. अगर राइबोसोमल RNA बन रहा है तो वहाँ पर RNA polymerase फर्स्ट यूज होता है. RNA polymerase second is used for mRNA, and RNA polymerase third polymerize tRNA. The process in eukaryote is much more complex. The eukaryote requires a minimum of 7 transcription factors in order for RNA polymerase second to bind to promoter region. RNA pol along with 7 transcription factor recognize the start signal or the promoter region TAA box on the DNA and directs the binding of enzyme to the promoter region or the Hogness box. A termination factor and poly A tail is required for termination of transcription. Actually in DNA there are 2 strands are present. One strand, if the direction is 3' to 5' end, then other strand runs from 5' to 3' end. ये DNA की 2 strands हैं. DNA की 2 strands क्योंकि RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. रिप्लिकेशन में क्या होता था कि DNA की दोनों स्ट्रैंड की कॉपी होती थी. यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA बनना है, इसलिए इन दोनों स्ट्रैंड में से, इस स्ट्रैंड में से और इस स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड है जो RNA बनाएगी. तो यहाँ पर जो ये वाली स्ट्रैंड है जिसका डायरेक्शन 3' टू 5' है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है. This is known as template, non-coding, antisense, और negative strand. तो ये वो स्ट्रैंड है जिससे mRNA बनना है. दूसरी स्ट्रैंड जिससे mRNA नहीं बनता है, इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, या पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं. तो इस DNA के 3' एंड के, टेम्पलेट के 3' एंड के की तरफ एक रीजन होता है. यूकैरियोट्स के अंदर जो सीक्वेंस होता है TA, T, A, N, A, ये 7 बेस पेयर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसको हम टाटा बॉक्स कहते हैं या हॉगनेस बॉक्स कहते हैं. प्रोमोटर रीजन वो रीजन है जहाँ पर ये RNA पोलिमरेज बाइंड होते हैं, क्योंकि ये इनिशिएशन साइट है. और इस इनिशिएशन साइट पर जब RNA पोलिमरेज बाइंड होगा तब ये उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन की कोडिंग ट्रांसक्रिप्शन होगा. उस स्ट्रक्चरल जीन से mRNA बनेगा और लास्ट में यहाँ पर टर्मिनेशन सीक्वेंस होगा. जब ये RNA पोलिमरेज टर्मिनेशन सीक्वेंस को रीड करेगा
तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है या बंद हो जाता है। Component of transcriptional machinery in prokaryote. Transcription requires a template, activated precursor, a divalent metal, and RNA polymerase. RNA polymerase consists of core enzyme with subunits. There are 2 alpha and 2 beta subunits and a sigma factor. The sigma factor interacts with core enzyme to form holoenzyme. The function of sigma factor is to recognize the start signal or promoter region where a specific sequence is present, and this sequence is Tata box on DNA, and directs the binding of enzyme to the promoter region. The core enzyme continues transcription. Alpha and beta polypeptides are protective, while beta and beta dash are catalytic in nature. A terminator factor called Rho factor is required for termination of transcription. Actually, in prokaryote, ये एक DNA है, इसका 3 प्राइम स्ट्रैंड, 5 प्राइम स्ट्रैंड, और ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम स्ट्रैंड है। ये हम प्रोकैरियोट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोमोटर रीजन होगा। इस प्रोमोटर रीजन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस यहाँ प्रेजेंट होता है, थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन। फाइव प्राइम एंड पर एक दूसरा सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जहाँ पर एक पोली ए टेल प्रेजेंट होती है, एक टर्मिनेटर सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बीच का जो रीजन है तो ये प्रोमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। इस स्ट्रक्चरल जीन से ही mRNA का फॉर्मेशन होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर जो पॉलीमरेज एंजाइम है, इसको हम कोर एंजाइम कहते हैं। कोर एंजाइम ये पॉलीमरेज है, RNA पॉलीमरेज। सबसे पहली चीज़ है कि RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट करने जा रहा है तो वो करेक्ट साइट से स्टार्ट करे, यानी उसका एक इनिशिएशन साइट होता है। अब ये इनिशिएशन साइट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये इनिशिएशन साइट प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसको टाटा एट कहते हैं, या TATA कहते हैं, या प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। लेकिन कोर एंजाइम के अंदर एक कमी है, कोर एंजाइम कैन पॉलीमराइज द mRNA। ये mRNA चेन को तो बना सकती है, लेकिन प्रोमोटर रीजन के इस स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर एक और फैक्टर होता है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर का जो फंक्शन है टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट इनिशिएशन साइट एट द प्रोमोटर रीजन। अगर ये सिग्मा फैक्टर नहीं होगा तो RNA पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के किसी भी जगह पर जाकर अटैच होगा। हो सकता है ये यहाँ पर अटैच हो जाए या यहाँ अटैच हो जाए, और एक इनकरेक्ट टाइप का mRNA बना देगा। तो एक फंक्शनल mRNA बनने के लिए ज़रूरी है कि जो RNA पॉलीमरेज है वो एक करेक्ट इनिशिएशन साइट पर जाकर अटैच हो, और इसको एक करेक्ट साइट पर अटैच करने, प्रोमोटर रीजन में अटैच करने के लिए सिग्मा फैक्टर का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये सिग्मा फैक्टर
कोर एंजाइम के साथ जब ये अटैच होता है तो इसको हम होलो एंजाइम कहते हैं। सिग्मा फैक्टर का जो फंक्शन है टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है। इसके बाद जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन से अटैच हो जाता है, ये सिग्मा फैक्टर इससे डिटैच हो जाता है और बाद में स्ट्रक्चरल जीन से जो एमआरएनए बनने का काम है वो आरएनए पॉलीमरेज अकेले करता है, यानी कोर एंजाइम अकेले करता है, वहाँ पर सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता है। सिग्मा फैक्टर का जो फंक्शन है वो कोर एंजाइम का हेल्प करना है टू बाइंड टू द करेक्ट रीजन ऑफ द प्रोमोटर से अटैच करने के लिए, एक करेक्ट इनिशिएशन साइट से बाइंड करने के लिए में सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम की हेल्प करता है। जब कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन से बाइंड हो जाता है, उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर डिसोशिएट हो जाता है और कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज अकेले ही एमआरएनए सिंथेसिस करता है। लेकिन जब ये कोर एंजाइम इस टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है तो फिर एक फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इस फैक्टर को हम रो फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं और जब ये टर्मिनेटर सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो जाता है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाता है, जो एमआरएनए चेन है वो रिलीज हो जाती है साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर और टर्मिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है।